وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 177 ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 77 اور 78 یہ دونوں آیات پر آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ اور تفسیر کی جائے گی، بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو آیت پڑھی گئی ہے آیت نمبر 177 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اعلان فرمایا ہے صاف طور سے ان لوگوں کے واسطے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے، نیا نیا سرچ کرتے ہیں لوگ اور بڑا ہی حق و باطل کا معیار قائم کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے کہ اس میں یہ گڑبڑ ہے اللہ کے اس دن میں، بس غنیمت یہ منائے کہ جس وقت یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم گڑبڑ ہے، رب العالمین ان کی زبان کو یعنی کہ بند کیوں نہیں کر دیتا ہے۔ غنیمت یہ منائے کہ اللہ نے چھوڑ دیا، ورنہ زبان کو رب العالمین وہیں پر پکڑ لیتا اور گنگا کر دیتا قیامت کی صبح تک کے لیے، کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ منی کے ایک نطفے سے جب تمہارا وجود ہوا، جب ہم نے تمہیں پیدا کیا، جب تمہاری نشو و نما کی، تمہاری جب تخلیق فرمائی، تمہارا ناک، کان، دماغ بھیجا، سر، پیر، سب کچھ ہم نے بنایا، ماں کے پیٹ میں تھے، اور جب پیدا ہو گئے، باہر آ گئے، تو اس کے بعد لگے میرے ہی دین کے اوپر انگلی اٹھانے، اتنا بڑا ہو گیا، اتنا ہم نے تم کو بھیجا دے دیا ہے کہ تم میرے احکامات کے جو حکمت ہیں اور احکامات کے پیچھے کیا یعنی کہ حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، تم ان کو پورا کا پورا سمجھ جاؤ، ان پر انگلی اٹھانے لگے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو چتایا ہے یہاں پہ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے رب العالمین کا یہ اعلان کھلم کھلا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً وہ لوگ جو ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدتے ہیں، کفر کو، شرک کو اختیار کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، کفر کو اختیار کرتے ہیں، شرک کو اختیار کرتے ہیں ایمان کے بدلے، ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کرتے ہیں، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، کچھ نہیں اللہ کا بگاڑ سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کا کام کرتا ہے، اتنا بڑا پاپ اور اتنا بڑا جرم جو کر رہا ہے، میرے دین کے ساتھ جو اس طرح کھلواڑ کر رہا ہے، میرے حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے، میرے ساتھ کسی کو اگر وہ شریک کر رہا ہے، میرے کسی حکم کا اگر وہ انکار کر رہا ہے، یا میرے دین برحق کا وہ اگر وہ انکار کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے مناسب ہے کہ دردناک عذاب تیار کر کے رکھی جائے، اس کی سزا دردناک عذاب کی شکل میں رب العالمین نے کہا ایسے آدمی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آج کے اس دور میں بہت سارے لبرل ٹائپ کے لوگ اسلاموفوبیا کے طور پر، اسلاموفوبیا کو جو نوجوان نسلوں کے دل و دماغ کے اندر انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جو نوجوان نسلوں کے دل و دماغ کے اندر بھرنا چاہتے ہیں، اور ان کو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پہلے اس کو ذرا سا اسلام سے کھسکاؤ، اس کے اندر اسلام کا یہ حکم ہے، اس کے اندر ذرا سا فلیکسیبلٹی کا ایک کیا ہوتا ہے عنصر، یا اس کے اندر ایک شک و شبہ پیدا کرو، اور جب وہ شک و شبہ میں پیدا ہو جائے گا اس اسلام کے کسی بھی حکم کو لے کر کے کہ ذرا سا وقت کے ساتھ اگر یہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، تو اس طرح سے زیادہ جو ہے نا یعنی کہ اس کے اندر کھینچ تان لمراؤ اور کھچاؤ اور تناؤ کے جو لوگ شکار ہوتے ہیں، اور یہ شکار کروایا جا رہا ہے باضابطے، تاکہ اسلام کی جو اصل تعلیم ہے، اسلام کا جو اصل چہرہ ہے، خالص جو دین اسلام ہے، اس سے لوگوں کو کسی طریقے سے دور کر دیا جائے، کیونکہ سارے دشمنان اسلام کو یہ بات بالکل اچھی طرح سے پتا ہے، بہت بہترین انداز میں پتا ہے، خاص کر کے جو لوگ نظر رکھتے ہیں، جو لوگ سمجھدار اور ہوشیار ہیں غیروں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر خالص دین اسلام ہے،
अगर इसके ऊपर अमल करने वालों की तादाद जो ही, एक तो अगर वो कम भी रहेंगे तो जहां रहेंगे वहां पर समझिए कि कभी भी हमारी दाल नहीं गल सकती है। जहां रहेंगे वहां पर हमारी दाल नहीं गलेगी, वहां पर हमारा जो है पेश किया हुआ जो उसूल है, ज़ाब्ता है, जो बनाया हुआ कानून रहेगा, वो सब की वो कंडम करेंगे, सबकी धज्जियां उड़ाएंगे। हम जो चाह रहे हैं कि कुफ्र और शिर्क को किस तरीके से बेहतरीन थाली में सजा करके और इन मुसलमानों के बच्चों के दिलो दिमाग में बिठाया जाए, शरायत किया जाए, इस मकसद में अगर हमें कामयाब होना है तो पहले इनके दिलो दिमाग में, इनके नौजवान नस्लों के दिलो दिमाग में इस्लाम के ताल्लुक से शक व शुबहात डालो। शक व शुबहात के नतीजे में कितना दिन तक वो अपने दीन पर से जैसे ही खालिस दीन से हटेगा, बस उसके बाद से तो हमारा जाल में फंसता चला जाएगा। और यही नतीजा होता है कि आए दिन जो लोग फितने इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, अभी आप सुने होंगे मध्य प्रदेश के अंदर 32 लोगों के यानी कि मुर्तद होने की खबर है। कितने लोगों की? एक साथ 32 लोग इस्लाम से फिर करके और सनातन धर्म में उनके अपना के हम लोग सनातनी बनना चाहते हैं, हम लोग घर वापसी करना चाहते हैं। ये क्या ये सब है? ये अल्फाज की जाल हैं, सिवाय इंसान के दुनिया और आखिरत में हलाक बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ उसके लिए खसारा है। ये घर वापसी क्या होता है? ये किसने ये टाइटल दिया? सारे लोगों का घर, कोई हो XYZ, आदम का अगर औलाद है वो, तो उसका घर आखिरत की तरफ जाना है। असल घर वो है सारे लोगों का। वहां की कामयाबी और नाकामी की फिक्र कर लो इस दुनिया के अंदर। ये घर वापसी, वतन वापसी, ये सब क्या है? कौन रहा है तीसमार खान यहाँ पर जो बहुत बड़ा अपना झंडा गाड़े हुआ है? तो कौन है जो आज वो बाकी है, कायम है? मिट्टी में मिल गया, उसकी हड्डियां को सीधा हो गई, मिट्टी में खाक मिल गई, पता नहीं चला कहां गया उसका तुर्रम खान बन रहा था और तीसमार खान बन रहा था, कहां गई? तो कहने का मतलब यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो फरमाया है, बहुत सारे आज के दौर में मुसलमान इस तरह के शक व शुबहात का शिकार है इस्लाम को लेकर के, दीन इस्लाम को लेकर के, कि उनको ये लग रहा है कि अगर गैर से अगर यहाँ पर रहना है तो भाईचारा है, तो उनके भी कुछ हम यानी साथ में रहने की वजह से उनके भी कुछ अहकामात पर अमल कर लें। किस तरीके से किया जा सकता है बताइए? मुस्नद अहमद के अंदर किताब ज़ुहूद के अंदर एक हदीस है, अल्लाह के नबी से फरमाते हैं, सुन ले आज के मुसलमानों के लिए बाइस इबरत और नसीहत है इस हदीस के अंदर, बहुत बड़ा दर्स है इस हदीस में। अल्लाह के नबी से फरमाते हैं, ये जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, न्याज फातिहा जो करते हैं, जो न्याज और चढ़ावा करते हैं, दर हकीकत उनसे गुजारिश है कि वो जरा कान लगाकर इस हदीस को सुनेंगे। कहते हैं चढ़ावा है तो क्या हो गया, चढ़ा दिए तो। अब सुन लीजिए क्या है। नबी अकरम से फरमाते हैं कि दो आदमी, पहले के जमाने में दो आदमी सफर कर रहे थे कहीं का, कहां का? कहीं पर जा रहे थे। चुनांचे उनका गुजर किसी कबीले के पास से हुआ, किसी गांव वालों के पास से हुआ। तो जब वो गुजर रहे थे तो वहां पर गांव वालों ने उनको रोका, रास्ता रोका और कहा ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ ये रिवाज है, हम लोगों का ये रिवाज है कि हमारा ये देवता है भाई, हमारा क्या है ये देवता है। जो भी उधर से गुजरता है ना तो उससे कुछ ना कुछ यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ाना पड़ता है, कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तब हम लोग गुजरने देते हैं। दो आदमी थे, एक ने कहा अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम चढ़ा देते, वरना नहीं है कुछ, हम लोग लिए नहीं है। तो उन्हीं लोगों में से किसी ने कहा कि हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि सामान चढ़ाओ, मतलब एक फॉर्मेलिटी है, एक रस्म है, इसको अदा करना पड़ेगा, आप चढ़ाओ, एक मक्खी को ही चढ़ा दो। तो उसने क्या किया, मक्खी को मारा और मक्खी को उसने चढ़ा दिया, पकड़ कर चढ़ा दिया, जो भी कर, मतलब मक्खी उसने चढ़ा दिया। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसका इंतकाल हुआ और डायरेक्ट ये जहन्नम में पहुंच गया। उसूल रब्बुल आलमीन ने उसका ये बतलाया कि तुम्हारा और कोई हिसाब किताब से लेना देना यहाँ पे नहीं है, तुम्हारी ओनली एक गलती, तुमने मक्खी चलाई है, उसकी वजह से आज जहन्नम की यानी कि आग में तुम जल रहे हो। यही गलती तुम याद रख लेना, बस बोलना नहीं। दूसरे ने कहा कि मैं तो नहीं चढ़ाऊंगा अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए, मैं दूसरे के लिए मैं नहीं चढ़ा सकता। लोगों ने उसको मारा और इस तरीके से वो शहादत का दर्जा पा गया और डायरेक्ट जन्नत में चला गया। वहीं पर लोगों ने उसको मार दिया कि तुम अपमान कर रहे हो हमारे देवताओं की, हमारे रस्म को तुम तोड़ रहे हो, हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। तो आज के दौर में मामूली देखिए क्या है, सिर्फ मक्खी का चढ़ा देना। आज हम और आप इसकी अहमियत को समझते हैं, ये कितना खतरनाक है, इसकी संगीनी को जानते हैं, ये कितना बड़ा जुर्म है। ये अल्लाह के साथ शिर्क करना हो गया कि तुमने अल्लाह के अलावा दूसरे पर क्यों चढ़ावा चढ़ाया, किसी के नाम के तुमने क्यों दूसरे के नाम का चढ़ावा चढ़ाया। तो आज ये तो मुसलमानों में बड़े ही यानी कि समझिए कि आम है, मुसलमानों के अंदर लग रहा है कि कोई गुनाह ही नहीं है।
बड़ी बड़ी गलतियां मुसलमानों के अंदर मेरे भाई और मेरे दोस्तों मौजूद हैं। इन्हें छोड़ने की और इनसे सच्चे दिल से तौबा और इस्तगफार की जरूरत है। आज हम और आप हुकूमत का रोना रोते हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है, बहुत बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदाब को अपने हाथों से मत हटाओ, आदाब इलाही को अपने हाथों से मत हटाने की कोशिश करो। आदाब इलाही को अपने हाथों से हटाने के क्या मतलब है? हज्जाज बिन यूसुफ एक बहुत यानी कि जालिम और जाबिर करके एक हुक्मरान गुजरा है। लोग परेशान हो गए, लोग बद्दुआ कर रहे थे कि किस तरीके से ये कुर्सी छीन जाए, इससे कैसे तब्दीली आए, दूसरा कोई हाकिम आकर बैठे। उसी मौके पर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा था, नहीं नहीं नहीं, वो अल्लाह का आदाब है, याद रख लो, और अपने हाथ से मत हटाना। इतनी भारी गलती करने की कोशिश मत करना। अब झेलो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदाब की शक्ल में उसको कुर्सी में बैठाया है, वो मारेगा, दुर्रा चला रहा है, कोड़ा चला रहा है, और जहां चाह रहा वहां पर जिसको कत्ल करवा रहा है ना, तो तुम हटाओ मत उसको, वरना और बुरा फंसोगे, जान लो। अगर वो अल्लाह का आदाब है तो बुरा फंसोगे, अपने हाथ से तुम नहीं हटा सकते। वो मुसल्लत रहेगा और उस वक्त तक तुम्हारी सुतैया करता रहेगा और तुम्हारी धुलैया कुतैया करता रहेगा, हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, यहां तक कि तुम अल्लाह के दीन की तरफ लौट नहीं जाते। तो अल्लाह के आदाब को हाथ से नहीं हटाना। हाँ, एक रास्ता है अल्लाह के आदाब को हटाने का, और वो ये है तौबा और इस्तगफार करो, रब हटा देगा। तुम क्यों हटा रहे हो? रब का आदाब है, रब हटाएगा। तुम्हारे अंदर कहां पावर है? तुम अल्लाह से रो, गिड़गिड़ाओ, अपने गलतियों की माफी मांगो, रब हटाएगा। तो आज हम गलतियां, तो कितनी बड़ी बड़ी गलती, शिर्क कुफ्र हमारे अंदर छुपा हुआ है, चोर बन करके बैठा हुआ है, चोर दरवाजे हमारे अंदर खुले हुए हैं शिर्क व बिदअत के, और रोना रो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या पता जो हो रहा है वो हमारे सारे अपने हाथों की करतूत और कमाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में जो बयान फरमाया है, दूसरी आयत तो बाकी रह गई, लेकिन इसके अंदर यह है, सही मुस्लिम की रिवायत बिल्कुल सही साबित होती है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी है कि एक आदमी सुबह में मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर, और रात में अगर मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। वो हदीस और ये आयत करीमा जिन्होंने ईमान के बदले में कुफ्र को खरीदा, बिल्कुल फिट आ रही हैं। तो इसलिए अपने आप को इस तरह की बीमारियों से बचाना है और इतनी बड़ी गलती करने से अपने आप को बचाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहना है कि हे मेरे मौला करीम, हमारी जिंदगी में किसी भी एतबार से शिरक न होने पाए, तो हमें शिरक से, बिदअत से तुम मुकम्मल तौर पर परहेज करने और बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।